अभी यूट्यूब में क्या दिखा रहा है? कुछ नहीं दिखा रहे हैं वहां पे, वो तभी मेरे को तो समझ में आया, यूट्यूब में कुछ दिखाई नहीं रहा था क्योंकि लाइव हुआ ही नहीं वो। अब चलो, अब आ गया। जी सर। सो वी आर स्टार्टिंग Communication विद of 11। communication of official information. Every government shall, in performance of its duties in good faith, हिंदी में बता दो ना इसको, communicate बोलो ना धीरे धीरे। आपको कोई भी communicate गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन है उसको नहीं, मतलब बाहर नहीं बतानी है until unless गवर्नमेंट ऑथराइजेस। हाँ, दूसरा है अगर आरटीआई इंफॉर्मेशन यदि मांगा जाए तो वो देना चाहिए ना फिर। हाँ, वो भी उसमें तो एक्टिव बोल रहा है लेकिन ना कि देते हैं आपको तभी दे। नहीं, हाँ, तो उसमें ये एक चीज है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, और जहाँ अथॉरिटी टू कम्युनिकेट नहीं है कोई इंफॉर्मेशन, वो नहीं दे सकते। If a person is not authorized to communicate such document or classified information, वो है आरटीआई के अंडर आ जाएगा। Subscriptions. No government servant shall accept with the previous sanction of the government or of the prescribed authority ask for or accept contributions to or otherwise associate himself with the raising of any funds or other collections in cash or in kind in pursuance of any object whatsoever. For gifts, save and accept provided in these rules, no government servant shall accept or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept any gift. Explanation: the expression gift shall include free transport, boarding, lodging, or any other service or any other pecuniary advantage, monetary advantage, when provided by any person other than a near relative or personal friend having no official dealings with the government servant. Note 1. A casual meal, lift, or other social hospitality shall not be deemed to be a gift. Note 2. A government servant shall avoid accepting lavish hospitality or frequent hospitality from any individual, industrial or commercial firms, organizations, etc., having official dealings with him. 2. On occasions such as weddings, anniversaries, funerals, or religious functions, when the making of a gift is in conformity with the prevailing religious and social practice, a government servant may accept gifts from his near relatives or from his personal friends having no official dealings with him, but shall make a report to the government if the value of such gift exceeds, this part is important, rupees 25,000 in the case of a government servant holding a Group A post, rupees 15,000 in the case of Group B, and rupees 7,500 in the case of Group C. In any other case of a government servant, shall not accept any gift without sanction of the government if the value thereof exceeds. नीचे दिया हुआ फिर। Viewer, please note any other case. अब पता नहीं other case क्या है? Other case वही rupees 1,500 in case of a government servant holding Group A and Group B post, rupees 500 in the case of a government servant holding Group C and Group D post. Any other case मतलब ऊपर, other than those defined above, मतलब marriages, funeral ceremonies, other ceremonies whatsoever, all those which have been mentioned above. फिर बोला, notwithstanding anything contained in sub-rules 2 and 3, a government servant being a member of the Indian delegation or otherwise may receive and retain gifts from foreign dignitaries if the market value of gifts received on one occasion does not exceed rupees 1,000. In all other cases, the acceptance and retention of such gifts shall be regulated by the instructions issued by the government in this regard from time to time. अगर notification देखना होगा. A government servant shall not accept any gifts from any foreign firm which is either contracting with the government of India or is one with which the government servant has or is likely to have official dealings. You must be an astrologer. जोशी बनना पड़ेगा। भाई ऐसा अगर आपने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली है तो आप नौकर बन गए, आपको गिफ्ट के बारे में सोचना नहीं चाहिए, आप शांति से बैठे रहो, जो तनख्वाह मिलती है उसमें गुजारा करो बस। Acceptance of gifts by a government servant from any other firms shall be subject to provisions of sub-rule 3. Dowry. No government servant shall 1. Give or take or abet, means assist the giving or taking of dowry, or 2. Demand directly or indirectly from the parent or guardian of any bride or bridegroom, as the case may be, any dowry. Explanation: for the purpose of this rule, dowry has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act 1961. अगर इसको स्ट्रिक्टली लागू किया जाएगा ना तो जितने भी बिहार के आईएएस सब मरेंगे,
होते हैं सारे के सारे जेल में होंगे, और यूपी के जो बिल्कुल ईस्टर्न यूपी वाले होते हैं सारे के सारे जेल में होंगे। ईस्टर्न राजस्थान यूपी और बिहार का तो कल्चर सिमिलर है। तो बिडिंग चलती है, आईएएस ऑफिसर है 50 लाख रुपया, ग्रुप बी है 25 लाख रुपया, गाड़ी तो जरूरी है। सर आजकल लाखों में करोड़ों में बात होती है सर, कहाँ आप वही। लाखों में पड़े हुए हैं। Public demonstration in honor of government servants. No government servant shall, except with the previous sanction of the government, receive any complimentary or valedictory address or accept any testimonial or attend any meeting or entertainment held in his honor or in the honor of any other government servant. दादा ये क्या है, ये जगह ये क्या है, मतलब कोई आदमी मेरे को प्रेज भी नहीं कर सकता। मान लीजिए आप, ठीक है, आप सर्विस में हो, पढ़े लिखे भी हो, आप स्कॉलर हो, तो आपको कोई बोल रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन बुलाकर बोल रहा है प्लीज एड्रेस अस एंड enumerate on your, what should I say, on certain things regarding your expertise or whatsoever. You cannot do it without sanction, except with the previous sanction. मतलब आपको पहले sanction लेना होगा जाने के पहले। मुझे तो नहीं लगता मेरी जिंदगी में कभी ये कंडक्ट रूल चेंज करेंगे। अब इतने आईएएस ऑफिसर हैं सारे के सारे, इसको तो रखेंगे ना अपने पास में, उनके पास में तो हथौड़ा है ना मारने के लिए। अच्छा है। Provided that nothing in this rule shall apply to a farewell entertainment of a substantially private and informal character held in honor of a government servant or any other government servant on the occasion of his retirement or transfer, or any person who has recently quit the service of any government, or the acceptance of a simple and inexpensive entertainments, simple and inexpensive entertainments arranged by public bodies or institutions. Now, the inexpensive has not been defined here. What is what means by inexpensive has not been defined. नहीं लागू होगा, खत्म हो गया। चलो आगे चलते हैं। No. 15 में अच्छा, private trade or employment, subject to the provisions of sub-rule 2, no government servant shall, except with the previous sanction of the government, engage directly or indirectly in any trade or business, or negotiate for or undertake any other employment, or hold an elective office, or canvass for a candidate or candidates for an elective office in any body, whether incorporated or not, or canvass in support of any business of insurance agency, commission agency, etc., owned or managed by any member of his family, or take part, except in the discharge of his official duties, in the registration, promotion, or management of any bank or other company registered or required to be registered under the Companies Act or any other law for the time being in force, of any cooperative society for commercial purposes. Participate in or associate himself in any manner in the making of a sponsored media, radio, TV program, or a media program commissioned by government media but produced by a private agency, or a privately produced media program including video magazine, provided that no previous permission shall be necessary in case where the government servant participates in the program produced or commissioned by the government media in his official capacity. अच्छा, ये क्या बोलना चाह रहा है? इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, मतलब परमिशन इसमें जरूरी है या नहीं है? इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, provided that no previous permission shall be necessary in case where the government servant participated in a program produced or commissioned by government media in his official capacity. मतलब अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में गवर्नमेंट मीडिया में जैसे दूरदर्शन है या ऑल इंडिया रेडियो में जाता है, तो जाता है मतलब बुलाने से तुरंत चला जाएगा या बता कर जाएगा? ये मेरा सवाल ये था। नहीं, अगर मतलब प्रोग्राम बोल रहे हैं ना, प्रोग्राम जहां पर कि उसका प्रेजेंस जरूरी है, मतलब गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, तो कोई तो उनको बुलाएगा, मतलब बुलाएगा ना, तो गवर्नमेंट ही बुला रही है, गवर्नमेंट को बुला रही है ना, तो वहां जरूरत नहीं है ऐसा करके बोलना चाह रहा हूं। जी 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 जी, सही है सर, आगे बढ़ते हैं सर। गवर्नमेंट का ओन कोई मीडिया है, गवर्नमेंट के ओन कोई एजेंसी है, तो वो तो गवर्नमेंट की है ना, तो इफ दे आर कॉलिंग देन गवर्नमेंट ही बुला रही है ना, तो वहां पे सैंक्शन की जरूरत किससे लगा? सैंक्शन वो गवर्नमेंट तो ऑलरेडी दे रही है ना, तो सैंक्शन दिलवा जा। Government servant may, without the previous sanction of the government, undertake honorary work of a social or charitable nature, or undertake occasional work of a literary, artistic, or scientific character, or participate in sports activities as an amateur, or take part in the registration, promotion, or management not involving the holding of an elective office. ये important है, of a literary, scientific, or charitable society
or of a club or similar organization, the aims or objects of which relate to promotion of sports, cultural or recreational activities registered under the Societies Registration Act or any other law for the time being in force, or take part in the registration, promotion, or management not involving the holding of elective office of a cooperative society, substantially for the benefit of government servants registered under the Cooperative Societies Act, or any other law for the time being in force. अरे ये प्रीवियस सैंक्शन पार्टिसिपेशन की चाहिए बात कर रहा इसमें. है, अगर वहां पर वो मॉनेटरी का चक्कर है, वो पैसा दे सकता है कि नहीं दे सकता है? कि अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रन करना है तो पैसा भी देना पड़ेगा. तो पैसा देने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ जाके तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारी शक्ल देखने के लिए अलाउ कर रहे हो. लेकिन यहाँ बोल रहे विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड दैट देखते हैं ना, provided that he shall he shall continue discontinue, वो तो चलो discontinue taking part in such activities if so directed by the government. ठीक है. In a case falling under clause D or clause D of this sub rule, his official duties shall not suffer thereby, and he shall within a period of 1 month of his taking part in such activity report to the government giving details of the nature of his participation. पैसे का बात कुछ नहीं बोल रहा है. तो ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाएगा, ये चलाएगा, वो चलाएगा, वहां पर क्या पैसा लगेगा? नहीं, कौन करेगा उसके लिए? सर बिल्कुल लगेगा सर. फंसाने का चक्कर है जबरदस्ती में, और कुछ नहीं. Every government servant shall report to the government if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages an insurance agency or commission agency. Unless otherwise provided by general or special orders of the government, no government servant may accept any fee for any work done by him for any private or public body or any private person without the sanction of the prescribed authority. सबलेटिंग नहीं होना चाहिए, क्वार्टर्स का सबलेटिंग नहीं करने का है. सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, हाँ इसको स्किप कर जाता है. सबलेटिंग नहीं कर पाएगा. इन्वेस्टमेंट, lending and borrowing. No government servant shall speculate in any stock, share, or other investment, provided that nothing in this sub rule shall apply to occasional investments. And occasional chalega made through stock brokers or other persons duly authorized and licensed who have obtained a certificate of registration under the लिमिट के शेयर ले लो और उसको साल भर के लिए रखो, साल भर के बाद में बेच दो, वो चलता है. स्पेकुलेट करोगे तो आपका ध्यान जो है वो सुबह शाम तक में यही रहेगा कि मार्केट कहाँ गया, मार्केट. स्पेकुलेशन का मतलब एक्सप्लेनेशन में दे रहा है. फ्रीक्वेंट परचेज और सेल ऑफ स्टॉक्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज विल कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्पेकुलेशन. दिस विल नॉट बी अलाउड. एक्सप्लेनेशन में बता रहा है. आगे चलते हैं सर. नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक और परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट or any other person acting on his behalf to make any investment which is likely to embarrass or influence him in the discharge of his official duties. For this purpose, any purchase of shares out of the quotas reserved for directors of companies or their friends and associates shall be deemed to be an investment which is likely to embarrass the government servant. ये possible नहीं, permission नहीं है इसके लिए. अच्छा, no government servant who is involved in the decision making process of fixation of a decision making process is important. A fixation of price of an initial public offering. अगर मान लो शेयर अलॉटमेंट हो रहा, अगर उसमें आपका कुछ से है तो वो नहीं होना चाहिए. नहीं, ये खास करके बोल रहा है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. हाँ वही. किसी भी गवर्नमेंट के जैसे LIC का कहीं पर भी आ रहा है, कोई शेयर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो उसमें तुम घुसो मत जबरदस्ती में. जी, इसको स्किप कर जाता है. ओके. डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इन द कोई शेयर नहीं होना, उसको से नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है ना वो. जी जी जी. इन्वॉल्व फिक्सेशन ऑफ प्राइस में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. और दूसरा बोल रहा है डिसीजन इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी फाइनल. No government servant shall save in the ordinary course of business with the bank or public limited company either through himself or through any member of his family or any other person acting on his behalf, lend or borrow or deposit money as a principal or an agent to or from or with any person or firm or private limited company within the local limits of his authority or with whom he is likely to have official dealings or otherwise place himself under any pecuniary obligation, monetary obligation to such person or firm और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. मतलब एक तो लेन देन का कोई काम होना नहीं चाहिए या डिपॉजिट का एज अ प्रिंसिपल और एन एजेंट और हैव एनी ऑफिशियल डीलिंग.
lend money to any person at an interest in any manner whereby return in money or in any kind is charged or paid, provided that a government servant may give to or accept from a relative or personal friend. ये चलेगा. A purely temporary loan of a small amount, देखिए, पता free नहीं of क्या interest, that has not been defined. Or operate a credit account with a bona fide tradesman, or make an advance of pay to his private employee, provided further that nothing in this sub-rule shall apply in respect of any transaction entered into by a government servant with the previous sanction of the government, when a government servant is appointed or transferred to a post of such nature as would involve him in the breach of any of the provisions of sub-rule 2 or sub-rule 4. He shall forthwith report the circumstances to the prescribed authority and shall thereafter act in accordance with such order as may be made. पिताजी को भी इतना बताना नहीं पड़ता घर में. इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इनअबटेंस को स्किप कर जाते हैं. इंसॉल्वेंसी और हैबिचुअल हाँ, ठीक है. इंसॉल्वेंसी सर आप हिंदी में बता दीजिए थोड़ा सा. कब इंसॉल्वेंट माने दिवालिया बोलते हैं ना उसको. दिवालिया और चाहिए उधार लेकर के बैठे हो. और वो भी इसमें प्रोवाइडेड ये है कि कोई लीगल प्रोसीडिंग अगर चालू होगी तो आपको बताना पड़ेगा. यही है इन अ नटशेल. यही है मूवेबल एंड इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी. ये पढ़ लेते हैं. एवरी गवर्नमेंट शैल ऑन हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू एनी सर्विस और पोस्ट submit a return of his assets and liabilities in such form as may be prescribed by the government, giving the full particulars regarding the immovable property inherited by him, or owned or acquired by him, or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person. फिर वही सवाल आता है, who is that other person? बेनामी या whatever is not defined. Shares, debentures, and cash, including bank deposits inherited by him or similarly owned, acquired, or held by him. Other movable property inherited by him or similarly owned, acquired, or held by him, and debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly. Note: Sub-rule 1 shall not ordinarily apply to Group D servants, but the government may direct that it shall apply to any such government servant or class of such government servants. Note 2. In all returns, the values of items of movable property worth less than rupees 10,000 may be added and shown as a lump sum. The value of articles of daily use, such as clothes, utensils, crockery, books, etc., need not be included in such return. Note 3. Where a government servant already belonging to a service or holding a post is appointed to any other civil service or post, he shall not be required to submit a fresh return under this clause because he has already done it in the first place. So already filed kiya hua. Every government servant belonging to any service or holding any post included in Group A or Group B shall submit an annual return in such form as may be prescribed by the government in this regard, giving full particulars regarding the immovable property inherited by him or owned by him or acquired by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person. फिर प्रॉब्लम है यहाँ पर. क्या है ये? है क्या ये? No government servant shall, except with the previous knowledge of the prescribed authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift, or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family. But what about this? In the name of other person तो लिखा ही नहीं यहाँ पे. इसमें नहीं लिखा हुआ. कुछ भी मतलब previous knowledge of the prescribed authority बोल रहा है. मतलब बेचने खरीदने के समय acquire or dispose. No servant except with the previous knowledge the prescribed authority acquire or dispose of. तो any dispose of this उसमें ये नहीं आ रहा ना फिर. तो इसमें any other person नहीं आ रहा ना. ये 1 में आ रहा है, 2 में नहीं आ रहा है. हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ. जबकि आना चाहिए था सब में. ये ड्राफ्टिंग का चक्कर है. वो वही है ना, क्लर्क लोगों को बोलते हैं ड्राफ्ट कर दो पार्लियामेंट में. हाँ जी सही है, सब कुछ मान लेते हैं. हाँ, छोड़ गया. हाँ. Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained by the government servant if any such transaction with a person
कोई ढंग का कोई आदमी हो पार्लियामेंट, इसको अगर कहीं कोर्ट में चैलेंज कर देते तो उड़ जाएगा साला दूसरा वाला। हाँ उड़ जाएगा, नीचे वाले में तो है ही नहीं। या तो ऊपर वाला उड़ेगा या तो नीचे वाला उड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा फिर उसमें। इधर भी नहीं है। प्रोवाइडेड दैट, एक जगह नीचे बोल रहा, provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained by the government servant if any such transactions is with a person having official dealing with him. चलिए ये ठीक है. Where a government servant enters into a transaction in respect of movable property either in his own name or in the name of the member of his family, he shall within 1 month from the date of such transaction report the same to the prescribed authority if the value of such property exceeds 2 months basic pay of the government servant, provided that the previous sanction लिमिट रखी थी। अब इन्होंने क्या बोला, बेसिक पे के हिसाब से कर दिया है। अगर आपका बेसिक पे मान लीजिए 15,000 है तो 30,000 रुपया हो गया ना, 30,000 रुपया तो आपको नहीं बताना पड़ेगा। 31,000 हो गई, 30,001 रुपया हो गया तो बताना पड़ेगा, ऐसा। जी provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained by the government servant if any such transaction is with a person having official dealings with it. चलिए ठीक है. The government or the prescribed authority may at any time by general or by special order require a government servant to furnish within the period specified in the order a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be prescribed in the order. इसमें वो other person का बात ही नहीं कर रहा. Such statement shall, if so required by the government or by the prescribed authority, include the details of the means by which or the source from which such property was acquired. Source भी बताना होगा. माता जी दिए थे बोलने से नहीं चलेगा. माता जी दिए थे मुझे. The government may exempt any category of government servants belonging to Group C or Group D from any of the provisions of this rule, except sub-rule 4. No such exemptions shall, however, be made without the concurrence of the Cabinet Secretariat, Department of Personnel. Explanation 1. For the purposes of this rule, the expression movable property includes jewelry, insurance policies, the annual premium of which exceeds 2 months basic pay of the government servant, shares, securities and debentures, all loans, whether secured or not, advanced or taken by the government servant, motor cars, motorcycles, horses are out, or any other means of conveyance, and refrigerators, radios, radiogram तो आजकल होता है. क्या बोल रहा है? अदर मींस ऑफ कन्वेंस में बैलगाड़ी और साइकिल भी आपको बतानी पड़ेगी है. घर में अगर बाइसिकल है तो भी बतानी पड़ेगी भाई है. बच्चों के लिए स्कूटर छोटा खरीदा हुआ वो भी बताना पड़ेगा अगर आप उसमें चलते हो तो. और वो जो लंगड़े लोग होते हैं ना अपना वो ऐसे कैसे चलते हैं उसको बताना पड़ेगा इनको कि हमारे पास वो है. और रेफ्रिजरेटर, रेडियोग्राम और ये है, लेकिन इसमें कॉस्टली मोबाइल सेट के बारे में बात नहीं कर रहा है. सरप्राइजिंगली नहीं है. मोबाइल के बारे में बात नहीं कर रहा है. कंप्यूटर के बारे में बात नहीं कर रहा सर. इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, लैपटॉप का बात नहीं कर रहा है. तो गवर्नमेंट सर्वेंट इसको उनको अगर तुम्हारे पास कोई लैपटॉप है चाहे वो 2 लाख रुपए का हो उसको मत बताना. बोलो नहीं ठीक है, कंडक्ट में किधर लिखा हुआ बताओ अगर कोई पूछता है तुम्हारे से. Prescribed authority means the government servant in the case of government servant holding any group A post except where any lower authority is specifically specified by the government for any purpose. To head of the department in the case of a government servant holding any group B post, head of office in the case of a government servant holding any group C or group D post. In the respect of a government servant on foreign service or on deputation to any other ministry or any important sir, or any other government, the parent department on the cadre of which such government servant is born or by the ministry to which he is administratively subordinate as a member of that cadre, वो इसका अथॉरिटी होगा. एक्सप्लेनेशन 2. हाँ ठीक है, ओके. फॉर द पर्पस ऑफ लीज, ठीक है. लीज माने क्या चलो चलता है. ये छोड़ दीजिए सर, उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. ये फॉरेनर के लिए 2018 में वही सब कुछ है. सिर्फ फॉरेन में आप अगर लैंड खरीदते हो तो आपको बताना पड़ेगा. Vindication of acts and character of government servant. No government servant shall, except with the previous sanction of the government, have recourse to any court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of a defamatory character.
provided that if no such sanction is received by the government servant within the period of 3 months from the date of receipt of his request by the government, he shall be free to assume that the permission as sought for has been granted to him. दादा, आप मुझे गाली दे रहे हो प्रेस में बैठे हुए, कोर्ट में कुछ मतलब कुछ भी 3 महीना बैठना होगा मुझे. I have to go to the court only with the previous sanction of the government. हाँ, सैंक्शन के लिए अप्लाई करूंगा, 3 महीना बैठूंगा मैं, सैंक्शन आएगी तब कोर्ट जा पाऊंगा, नहीं तो 3 महीना बाद जा पाऊंगा. तो अगर मुझे तो किसी गाली दे रहे हो, मुझे थप्पड़ मारा है, तो भी मैं मतलब कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी ना कि हाँ तुमने थप्पड़ मारा, मुझे FIR करना है. अजीब सा मतलब रूल है. Nothing in this rule shall be deemed to prohibit a government servant from vindicating his private character or any private character बोल रहा है, or any act done by him in his private capacity, and where any action for vindicating his private character or any act done by him in his private capacity is taken, the government servant shall submit a report to the prescribed authority regarding such action. अच्छा, यहाँ एक्शन प्राइवेट नेचर का यदि हो लेता हूं तो वो भी बताना पड़ेगा. Canvassing of non-official or other outside influence. गांधी जी के कुत्ते बना दिया था गवर्नमेंट सर्वेंट को इन लोगों ने. कुछ भी मार खाते रहो, चलता चुप रहो, बैठे रहो, गवर्नमेंट की परमिशन लो. गवर्नमेंट बोले यार क्या कर रहे हैं तमाशा करके, छोड़ देना, क्यों कोर्ट के चक्कर काट रहा है. जी. No government servant shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interests. Bullshit. देखिए सर, bullshit. In respect of matters pertaining to his service under government. तो इतना पैरवी जो किया जाता है मिनिस्टर के थ्रू, उसका आप क्या बोलेगा फिर? फिर से पढ़ता हूं सर. No government servant shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service under the government. This is blatantly misused. Outside influence, अगर मैं अपने बॉस का जाकर के टॉयलेट साफ करता हूँ, उसकी जो बीबी है उसकी शीट साफ करता हूँ, तो that is not outside influence. फिर तो कोई मिनिस्टर के साथ मेरा उठना बैठना है, मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे लिए ये करवा दीजिए, तो होता ही है सब. कौन मान रहा है, कौन कहाँ नोट रख रहा है इसका? वहां तो फटती है ना इनकी. Restrictions regarding marriage. No government servant shall enter into or contract a marriage with a person having a spouse living. ये तो ठीक है. गवर्नमेंट सर्वेंट प्रेम जी देख रहे हैं, ये हमारे पीसफुल के लिए एप्लीकेबल है क्या? नहीं सर, मतलब they can marry more than one. होना तो चाहिए, यदि रूल में ये कहा जा रहा है तो होना चाहिए, लेकिन कहाँ, मतलब ये दिखाते होंगे एक, बाकी 3 ऐसे ही रहते होंगे. 4 का है ना प्रोविजन, उनका 4 का है, तो यहाँ पे लिख देना चाहिए था ना इनको कि हाँ ठीक है, this rule is not applicable in case of peaceful. नहीं लिखा है. No government servant having a spouse living shall enter into a contract of marriage with any person, provided that the government servant may permit a government servant to enter into a contract any such marriage as is referred to in clause 1 or clause 2, if it is satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such government servant. या personal law का बात कम से कम कर रहा है. And the other party to the marriage आ गया. Personal law, provided that में आ गया. Personal law, such marriage is permissible under the personal. मतलब 4 का नाम डाल दूंगा. अच्छा, फिर पेंशन का क्या होगा? फैमिली पेंशन का चारों को मिलेगा. चारों को मिलेगा और क्या? वही बोला था, I was surprised ऊपर वाला practically provided. अच्छा, चारों को सर, चारों को फिर किस हिसाब से मिलेगा? पोर्शन कर देगा 1/4 वो तो कुछ भी नहीं रहेगा फिर तो. 1/4 कर देगा. अच्छा, एक अगर आप के पास में 5 बच्चे हैं, के पास में 25 बच्चे हैं, तो तरीके से क्या होगा? लेकिन वो तो वही बोलेगा ना कि ठीक है, तेरे हस्बैंड ने 4 शादी, चारों को दे देते हैं एक को लेकर. अच्छा, there are other grounds for doing so. What are these other grounds? वो अगर मान लो पहली वाली बीवी पागल हो गई हो या इनकैपेसिट हो गई हो, बच्चे ना पैदा कर पा रही हो, तो this should have been defined ना.
यदि पर्सनल लॉ में वो सब डिफाइंड है तो यहाँ भी डिफाइंड होना चाहिए था ना, अदर ग्राउंड्स। मुझे तो यही लगता है government ग्राउंड servant, में वही होगा, मेंटली अनस्टेबल है, ये है वो है, वो ग्राउंड पे कर सकता है। a government servant who is married or marries a person other than of Indian nationality shall forthwith intimate हम the लोगों fact ने to the एक government. केस पढ़ा था ना, जिसमें वो कोई मराठी बंदा था जिसने शादी किया था और बाद में बच्चे नहीं हो रहे तो उसकी बीवी ने बोला था दूसरी शादी कर ले, और उसके बाद में फिर उसने अपना मरने के टाइम में कुछ मिलिट्री में था मेरे ख्याल में, उसने कुछ बोला था ना कि जी मेरी जी, दूसरी बीवी का नाम इंक्लूड कर दो, तो उन्होंने बोला था हाँ हाँ नहीं नहीं तुमने तो ये गवर्नमेंट का रूल इन्फ्रिंज किया है, ये किया है, वो किया है। हाँ हाँ, एक दफे नाम जो दिए वो चेंज नहीं होगा फिर। वो जो हम हाँ लोग पढ़ रहे थे जजमेंट, लेकिन बच्चों को हाँ दिया गया, उसमें हाँ तो जजमेंट में यही कहा गया था कि बच्चे जो है वो मासूम है, वो तो कुछ गलती किए नहीं है तो उनको मिलेगा। हम्म, वो द बाद में गवर्नमेंट तो सर्वेंट, कोर्ट में गई थी, वो शायद कोर्ट में गया था ना, उसके बाद में शायद हाँ वो हाँ हाँ हाँ, तो कोर्ट तो, कोर्ट हेल्ड दैट द चिल्ड्रन are innocent, they have done nothing, so they deserve to be given appropriate, मतलब dues, दारू नहीं पीनी, applicable dues. ये A government servant was married or marries a person of other than of Indian nationality shall forthwith intimate the fact to the government. Consumption of intoxicating drinks and ये drugs. हमारे ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने मिनिस्टर ने बताया होगा पक्का, क्योंकि वो जापानी से शादी हाँ किया ना। हाँ हाँ हाँ. Consumption of intoxicating drinks and drugs. A government servant shall strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force in any area in which he may happen to be for the time being. He shall not be under influence of any intoxicating drink or गवर्नमेंट सर्वेंट हैपन टू बी फॉर द टाइम बीइंग, मतलब घर में भी नहीं पी सकता वो। in any area in which he may happen to be for the time being. ड्यूरिंग ड्यूटी की बात कर रहा होगा यार। कहाँ लिखा हुआ है इस पर ड्यूटी? इफ यू स्ट्रेच द लॉ अ बिट टू फार, तो कहाँ लिखा हुआ है? Not be under influence or any intoxicating drink or drink during the course of his duty and in shall any also be, area in which in any area बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है strictly abide by law Law, relating to intoxicating drink or drug, जैसे हाँ तो गुजरात घर में यदि पी रहा तो मैंने घर पिएगा। में पी रहा है या कोई बार में पी रहा है तो ठीक है, बाहर यदि सड़क पे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो फिर तो फंस जाएगा ना। जहाँ पर प्रोविजन है वहां पर नहीं पिएगा, उसके बाद में यहाँ पर ड्यूटी पे नहीं पिएगा, दूसरे में बोल रहा है जैसे करके ना, his duty and not be under the influence of any intoxicating drink or drug during the course of his duty, बोल रहा है, and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drink or drug. To refrain from consuming any intoxicating drink or drug in a public place, ठीक है, and not shall appear in also take due care that performance of his duty हाँ at any time is not affected in any, मतलब थोड़ा थोड़ा एक दो गुण चलता है, ऐसा कुछ बोल रहा है लगता है। अच्छा, I am taking due care that my duty, मतलब performance of duty is not affected. आप बताओ ना मेरे को कि यहाँ पे ठीक है मेरी ड्यूटी परफॉर्मेंस गड़बड़ हुआ क्या? अच्छा, ये सर्जन्स जो हैं, आई हैव सीन मेनी सर्जन्स ऑपरेटिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, वो खुद बोलते हैं कि हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, नहीं तो refrain from consuming any intoxicating drink or drug in a public place, not appear in a public place in a state of intoxication, not use any intoxicating drink or drug to excess. excess का definition नहीं दिया गया जब तक गड़बड़ नहीं कर रहा है। Explanation: for the purposes of this rule, public place means any place or premises including a conveyance to which the public have or are permitted to have access, whether on payment or otherwise, फ्री हो या पेमेंट दे करके एक्सेस किया गया हो जगह, कन्वेंस। प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 years of age, नो गवर्नमेंट, ये इसका भी तो केस हुआ था सर। ये कोई आया घर में बात कर रहे हैं ना, घर में नहीं करने का ना। हाँ, घर का ही तो एक दिल्ली में केस हुआ था ना, कोई लेडी IAS ऑफिसर थी। हाँ 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 हाँ, ओके, ये नया है 37 अमेंड किया, 22A है वो। अच्छा, हाँ हाँ, 37 लिखा हुआ है ना, छोटा। If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the government
whose decision thereon shall be final. लगता है खत्म होने वाला है ये Delegation of powers. The government may by general or special order direct that any power exercisable by it or any head of department under these rules except the powers under Rule 23 and this rule shall, subject to such conditions if any, as may be specified in the order, be exercisable also by such officer or authority as may be specified in the order. Repeal and savings. Any rules corresponding to these rules in force immediately before the commencement of these rules and applicable to the government servants to whom these rules apply are hereby repealed. Chaliye. That means with prospective effect here, provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules, provided further that such repeal shall not affect the previous operation of the rules so repealed, and the contravention of any of the said rules shall be punishable as it were a contravention of these rules. For the benefit of viewers and especially law students, this type of section or rule is always in any act or any rule. ये repeal and saving हमेशा रहता है. जी जी जी. ध्यान रखना, इसका कोई मतलब ये यही लैंग्वेज हर जगह होगा. यहाँ पर क्या होगा, सेक्शन लिखा होगा, एक्ट लिखा होगा एक्ट में, और यहाँ पर रूल लिखा है. अच्छा, ये चेंज हुए हैं सर, देखो. हाँ, सारा वो जो हम लोग नंबर्स देख रहे थे ना, हाँ, नोटिफिकेशन सारा दिया हुआ है. 2014 में, 2011 में, 2009 में. ओके 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 ओके. ये रूल्स इन दिस एंड अदर रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स. ओके, ये ऑर्डर नंबर, नोटिफिकेशन नंबर सब 1986, 1986, 1999. ओके, 31 गया. 2011 का भी है. हाँ, वो तो 2011 का है. वही मेरे ख्याल में वो होगा ना जो आप बोल रहे थे ना कि वो जो पब्लिक सर्वेंट ने अपने नौकरियां नहीं कर रखा. हाँ, वो 2011 का. 2014 भी है. 11-14 है. हाँ, 14 भी है. बाकी सब पहले का है. ओके, ये क्या है, खत्म. ये 2014 का है. GSR 845/27 और ये 27 के, ये दो है. 3 में. ओके, 2011 वाला 18 में चेंज. जो नीचे हम लोग पढ़ रहे थे वही देखिए. ये मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये 18 में चेंज हुआ. रूल 18 में चेंज किया है. मॉनेटरी लिमिट की जो वो बोला ना, 3 टाइम्स बेसिक पे की जो बात कर रहा है वहां पर, 3 टाइम्स ऑफ द बेसिक पे. हाँ, और ये भी ऐसे 13 और 18 में यहाँ पर चेंज हुआ है. और 18 में काफी बार चेंज हुआ है. 18 में हमेशा वो मॉनेटरी लिमिट की बात कर रहा है ना, वो चेंज कर रहे हो जी. 21 डिलीटेड, 21A डिलीटेड बता दिया. एनीवे, तो ये हो गया कंडक्ट रूल का समापन. जी. अब कौन है भाई? डुप्लीकेट पैरोडी दादा, क्यों बता रहे हो कि अमेंडमेंट करना है? टोपी बाजों को वो इस चीज के पीछे पड़ जाएंगे, ये पता नहीं चलना चाहिए. काफी काम आ सकता है. अबे कर दिया उनको, अलाउड है वो. दे आर अलाउड टू मैरी मोर देन वन. प्रोवाइडेड में लिखा हुआ है, उनका लॉ अलाउ कर रहा है. तो नेक्स्ट टाइम हम लोग सिविल सर्विसेज क्या होता है, सर्विस रूल में आ जाएंगे. CCS और CCA रूल में आ जाएंगे. जी. किसी को बुलाना है क्या? इनको बुलाएं किसी को क्या? प्रेम जी बुला लीजिए. प्रेम जी हाँ तो बुला लीजिए. मैं इनवाइट कर देता हूँ, अगर आना है तो आ जाए. डिस्कशन हो जाएगा थोड़ा सा तो ठीक ही रहेगा. काफी दिनों के बाद में दिखाई दे रहे लोग. प्रेम जी साहब आ जाओ. हेलो, ये आ गया. प्रेम जी से पहले प्रदीप खुद पढ़ा. ठीक है. प्रदीप जी नमस्कार. नमस्कार. जी बहुत ढेर सारे आशीर्वाद. दशहरा के शुभकामनाएं. बिलेटेड दशहरा. ये डुप्लीकेट पैरोडी मेरे ख्याल में यही है क्या? एक तुम हो क्या?
हाँ, मैं अलग नाम से भी आ जाता हूँ ना। ये देखा, यही है वो। दादा बोल रहे हैं, दादा में दो ही बोलते हैं, अवकड़ बोलेगा या तो ये बोलेगा, तो यही होगा शायद। ओके, प्रेम जी साहब तो सोच आ रहे काफी होंगे। डेवलपमेंट हो गई, पिछली बार से अब आए हो, काफी डेवलपमेंट हो गई है। इजराइल वाला भी वो चालू हो गया है, हाँ हाँ हाँ, और वो यूक्रेन वाला तो खैर चल ही रहा है, उसको अब सारे भूल गए हैं। यूक्रेन और इजराइल से ज्यादा महुआ मित्र चल रही है भाई। महुआ मोतरा क्या है, ऐसे तो बतेरे ही हैं, ये कोई बहुत अकेली डेंजरस थोड़ी है है। वो मामला, बहुत डेंजरस है साहब, आप समझते नहीं हो उसको। सी हैज पास्ड ऑन द पासवर्ड एंड आईडी टू अ पर्सन हु इज सिटिंग इन दुबई, व्हिच इज नॉट अलाउड एट ऑल। अच्छा, उस और बंदे ने एफिडेविट निकाला, ये बोली कि ऐसे सफेद कागज पे, उस दिन फिर दूसरा एफिडेविट देखा मैं, सेम एफिडेविट, वो एम्बेसी का उस पे सील है। अब क्या करेगी वो? नहीं, मुझे तो लगता है दादा, ये लोग सारे के सारे जॉर्ज सोरेस के पेरोल पे हैं ये लोग। अगर इनका ढंग से एनआईए या कोई दूसरी एजेंसी इनका इन्वेस्टिगेट करे ना, तो इनको मालूम पड़ जाएगा कि दे आर इन द पेरोल ऑफ जॉर्ज सोरेस एंड हाउ हेल बेंट। देखो दादा, एक मिनट बताओ मेरे को, लेट इट बी। अभी तो ठीक है, हम लोग डिस्कशन कर लिया। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाके क्या बोला था कि आप लोग हमारी मदद करो, इंडिया मोदी गवर्नमेंट को गिराने के लिए। जी जी बिल्कुल। Now, what does it mean? That you are seeking foreign help to dislodge an elected government in India. करेक्ट, एंड दैट इज अ क्राइम बाय इटसेल्फ, और a अब heinous crime. मणिशंकर अय्यर के बाद अगर महुआ मोइत्रा इस तरीके के सवाल पूछती है, और जो हीरानंदानी ने जाकर के वो जो हमारा क्या बोलते हैं, अरे वो क्या है, वो वहां के जो बेंगलोर वाले हैं, जो जूनियर आईटी मिनिस्टर है, राजेश्वर राय 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 समथिंग लाइक दैट, राजेश्वर राव, ऐसा कुछ है ना, वो बेंगलोर वाले वो दाढ़ी वाले हैं ना, वो उनके पास में सेम सवाल पूछे गए थे, इसलिए हीरानंदानी ने पूछे थे वहां पर। तो अगर ये सवाल आप बार बार अडानी के बारे में पूछ रहे हो, देखो अडानी इज इन द फील्ड ऑफ, मैं एक अपना थोड़ा सा मैं अपना बता रहा हूँ, अडानी इज इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नाउ इफ infrastructure development is hampered in India, then the development of India will be hampered other way. करेक्ट। दूसरा ये है कि अडानी ने वहां पर कौन सा, जो इजराइल में कोई एक पोर्ट बनाया है, हमसा पोर्ट या हवास पोर्ट कोई बनाया ना वहां पर, कुछ भी वहां पे हाइफा। तो अडानी इज क्या बोलते हैं, eyesore in the eyes of those enemies who are against India. करेक्ट। उसमें अमेरिकन भी हो सकते हैं, उसमें यूरोपियन भी हो सकते हैं, उसमें रशियन भी हो सकते हैं, उसमें सारे के सारे खबीर हो सकते हैं। और अगर आप पैसा लेकर के, चाहे वो आप गिफ्ट में ले रही हो, चाहे अब देखिए ये पब्लिक सर्वेंट है ना, अभी हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल गिफ्ट बिल्कुल लेना प्रोहिबिटेड है। अरे ये तो बहुत कुछ ली सर, इसका तो मतलब मत पूछे, बहुत कुछ ली है। सबसे बड़ी बात ये फोर्स करती थी, was also being done by राहुल गांधी। करेक्ट। तो मैं तो नहीं बोलता कि हाँ ये किसी भी तरीके से सी आर फॉर दैट मैटर, कोई भी बंदा अगर आपकी डेट में मोदी के को अटैक करने के बहाने भारत को अगर नीचे ले लेना चाहता, ही इज एन एनिमी ऑफ इंडिया। सीधी बात तो मैं ये बोल रहा हूँ, डेफिनेटली। इसीलिए शायद कुछ भी हो, ममता सेंसिंग द ट्रबल, ममता ने कुछ नहीं किया, बोला, ममता ने बोला नहीं तू अपने आप डिफेंड कर, जो भी करना है तो कर। ये भी बात सही है सर। फिर ममता तो अदानी को बुला करके वहां पर बुला रही है, बोलते ठीक है हमारे यहाँ पे आके डेवलपमेंट करो, बोली तो थी। और ये कुतिया कुत्ते के चक्कर में झगड़ा करके बैठ गई वहां पर, दुनिया भर का तमाशा करवा के रख दिया। दादा यहाँ क्या कहाँ तक संभालेंगे, ये पूरा देश तो इन्होंने चाइना के आगे धर दिया था इनके साथ एमओयू साइन करके, इस हिसाब से तो सारे अंदर करनी चाहिए। दादा प्रदीप एक बात बता दूं, थोड़ा सा इसको, जय भारती साहब नमस्कार।
नमस्कार सर। सबको प्रणाम दादा। जय दादा, चांस पर आ रहे हो, जीते रहो। बिलेटेड दशहरा ग्रीटिंग सर। हाँ, बिलेटेड ग्रीटिंग। जय श्री राम सबको। जय श्री राम, जय श्री राम। आप मुझे ये बताओ, एक छोटी सी बात बताना, प्रदीप जरा ध्यान से सुनना है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। द टाइमिंग ऑफ लैंडिंग ऑफ नवाज शरीफ इन पाकिस्तान व्हेन हमास एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन, उसका सिग्निफिकेंस क्या है बताओ। वही This idiot has landed in Pakistan. नहीं, फिर से वो ना अमन की आशा और वो सब, फिर वही गाना शुरू हो जाए। करेगा, इलेक्शन टाइम है यहाँ पर, 4 हाँ, महीने इसीलिए तो मैं बोलता रहेगा बोला, ठीक है मैं इंडिया के साथ ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। और यही रिलेशन चाहता हूँ। पाकिस्तान के यही गले जब नवाज शरीफ के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी ने या मतलब बस का समझौता किया और बस से गए, उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, कारगिल हुआ, युद्ध। हाँ, युद्ध उसके बाद में जब ये भाई साहब गए अफगानिस्तान गए थे और उसकी पोती की ग्रैंड डॉटर की किसी की शादी में वहां पर अनशेड्यूल्ड विजिट मारा, तो यहाँ पर उरी हुआ। तो ये तो सपोला इसको लाया इसीलिए गया है टू मलाइन द इमेज ऑफ मोदी की। मैं तो मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया के साथ में दोस्ती करने की, लेकिन ये मेरे साथ दोस्ती नहीं कर रहा है। और उससे क्या होगा, उससे होगा क्या कि जितने भी यहाँ पर पाकिस्तान परस्त मुसलमान हैं या पाकिस्तान को चाहने वाले हिंदू लोग हैं जिनको लिबरल बोलते हैं, वो सारे दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देंगे। अरे मोदी के साथ में तो नवाज शरीफ दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन मोदी साहब अपने वोट के चक्कर में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और वो अलाइनमेंट हो जाएगा वहां पर। तो एनी हाउ दे वांट दैट बीजेपी एंड मोदी शुड नॉट कम इन पार ये 2024 में। ये सब तमाशा चल रहा है। अभी मोइत्रा को तो मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। मोइत्रा को देना चाहिए एनआईए को, पकड़ के इसको अंदर करो और उसको बुलाओ सारे को, वहां से दुबई से बैठा हुआ है। हाउ कैन अ पर्सन हु इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ आईडी ऑफ दिस, तुम साले इतने बड़े बिजनेसमैन हो, तुमको ये मालूम कि हाँ क्या नाटक चल रहा है, क्या नहीं नाटक चल रहा है। पार्लियामेंट का सेशन पूरा 2023 का साला फरवरी वाला गायब कर दिया इन्होंने हिजनबर्ग के चक्कर में, और तुम साथी से बैठे हुए अपने फायदे से के लिए। उसको बुला करके उसको भी साले को एनआईए, इनका एनआईए कोर्ट में दे आर एनिमी ऑफ द नेशन, उस चक्कर में इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूं। हाँ दादा जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब चाइना ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को और अपने डिफेंस मिनिस्टर को दोनों को सैक किया। एक बंदा जुलाई से दिखाई नहीं दे रहा था, दूसरा बंदा अगस्त से दिखाई दे रहा था। अरे भाई गए कहाँ वो? अच्छा, फिर रॉकेट फोर्स के जनरल्स थे, उनको भी तो हटा दिया गया, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। जैकमा दिखाई पड़ा क्या सर दादा? नहीं, वो 3 महीने बाद वापस आ गया था, बट he has been asked to maintain low profile। हाँ, बोलेगा नहीं वो कुछ। आज की डेट में ये कुत्ता बोल रहा हूँ साला, जो मेरे यूट्यूब का चैनल का सत्यानाश कर दो। इस कुत्ते ने आज सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लिया है। क्या मतलब है? तू प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होने वाला है, मुझे उस गधे का इंटरव्यू क्यों ले रहा है? मतलब हाउ मच लो somebody can stoop? तू प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है और उससे बोले रहे, उसकी भाषा सुनोगे आप? मैं पूरा ओपन दिखाता हूँ। अभी अगर मेरे चैनल को क्या बोलते हैं, राहुल गांधी के इंटरव्यू के चक्कर में अगर बैन किया जाएगा तो बैन हो जाए मेरा चैनल, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई वो नहीं है। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से कंटेंट सुनो आप, सबको सुनना चाहिए। जितना भी हिंदुस्तानी लोग हैं, जो भी हिंदुस्तान से भारत से प्यार करते हैं, दे शुड लिसन इट। क्या तमाशा किया है गधे ने, कितना नौटंकी करके लेकर के आए उसको। सॉरी है, मैं थोड़ा सा नहीं, कोई बात नहीं है सर, मैं समझ रहा हूँ सर, मैं वॉच भी कर रहा हूँ ये सब चीज। अच्छा हुआ आप बोले दादा। डेवलपमेंट इतनी हो गई है कि बोलना जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल।
समाप्त किया जाए सर। एक मिनट थोड़ा सा देख लो इसको कैसे लेकर के आ रहा हाँ, है जी 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 कमीना उसको, जी जी। है देखो ये उसको लेकर के आ रहा है बुड्ढे को। दादा डॉक्यूमेंट्री है क्या ये? इसको क्या लकवा मार दिया क्या? इसको राहुल लकवा गांधी मार ने दिया। इसका इंटरव्यू लिया है सतपाल मलिक का। तो आप कब से हैं राजनीति में? मैं राजनीति में स्टूडेंट लाइफ से हूँ, क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट था ट्वाइस, और जिस साल मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रहा था तभी मुझे चरण सिंह जी ने बुलाया, और चरण सिंह जी के तब 30 MLA छोड़ गए थे। किस साल की बात है? ये दैट इज 1973। तो उन्होंने कहा सतपाल देखो बेईमान, मैंने पार्टी बनाई थी किसानों की, मुझे छोड़ गए। मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने बड़ा इमोशनल होकर कहा कि तुम इस पार्टी को संभालो, किसानों की पार्टी है, और किसी से बात मत करो। अभी जाके मेरी मीटिंग है शाम को 5 बजे जिम खाना में, उससे पहले अनाउंस कर दो तुम मेरे साथ हो, और किसी से मत मशवरा। जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही किया, और नेक्स्ट डे आ गया कि मैं उनके साथ हूँ। उन्होंने सारी पार्टी मुझे सौंप दी, जनरल सेक्रेटरी बना दिया। उसके बाद उन्होंने MLA लड़ाया, तो मैं 26 साल की उम्र में 74 में MLA हो गया। फिर राज्यसभा का मेंबर हुआ, 2 बार लोकसभा का हुआ, मिनिस्टर हुआ, और अब गवर्नर हुआ। तो तब से लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट होल टाइम पॉलिटिक्स में आ गया, फिर प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर पाया। तो कैसे थे वो चरण सिंह? चरण सिंह जी वो अच्छे थे। तो उनकी दिक्कत क्या थी कि उनको किसी भी तरह प्राइम मिनिस्टर बनने का एक सपना देखते थे वो। तो उसमें उन्होंने इधर उधर किया, और वो कल्चर्ड, ईमानदार, बहुत स्वीट आदमी थे। बट ये मतलब हमारे जो पॉलिटिशियंस है, काफी लोगों को ये हो जाती है कि बस बनना ही बनना है। हाँ, मतलब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके बनना है। मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी पूरी जो स्ट्रेंथ है जो किसी के पास नहीं है, वो ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे सामने वाले सब खलास हो जाते हैं। बट ये होता क्यों है कि मतलब इतनी मतलब इम्पेशंस हो जाती है कि बस हर हालत में ही, मतलब काफी पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं। आजादी के फौरन बाद तो राजनीति एक तरह से कर्तव्य था, और लोग करते थे उसको उस तरह। फिर ये प्रोफेशन हो गया, और अब ये बिजनेस हो गया है। आप जम्मू कश्मीर में जब थे, जी, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मेरी ये राय है कि जम्मू कश्मीर को आप जबरदस्ती या फौज से ठीक नहीं रख सकते हैं। वहाँ के लोगों को जीत के आप कुछ भी कर सकते हैं, और वहाँ के लोग एमिएबल हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। मैंने तो देखा, मैंने उनको अपने साथ किया। आपने अंदर से डिटेल से देखा, सोल्यूशन वहाँ किस बेसिस पे आएगा? इमीडिएटली तो उनकी स्टेटहुड वापस करना चाहिए। उनको इतना 370 नहीं चुभा जितनी स्टेटहुड लेकर यूनियन टेरिटरी बनाना चुभा। और यूनियन टेरिटरी इन्होंने किस लिए बनाया, जो मुझे लगता है, मुझे नहीं बताई वो बात, इनको ये अंदाजा था कि पुलिस रिवोल्ट कर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। पुलिस इतनी फेथफुली रही भारत सरकार के साथ कि ईद का महीना था, एक एक सिपाही ने छुट्टी भी नहीं मांगी, वहीं लाइन में रहे। तो एक तो स्टेटहुड, और उनका प्रॉमिस भी है अमित शाह का हाउस में, उसको इमीडिएटली वापस करना चाहिए, और फिर इलेक्शन करा देने चाहिए। बट जब मैं जम्मू गया, ये जम्मू के लोगों को भी ये लगता है कि हमारा मतलब स्टेटहुड ले लिया। हाँ, उससे वो भी खुश नहीं है। सबसे ज्यादा कोई चीज चुभी है। तो ये मतलब कर क्यों नहीं रहे इसको? पता नहीं, मेरी बात हुई, मैंने कहा वापस कराइए, तो बोला कह दिया होगा, क्या जरूरी है वापस कराना, चल तो रहा है सब ठीक। कहाँ ठीक चला, सारी इंसर्जेंसी वापस आ गई है, टेररिस्ट एक्टिव हो गए। अब तो काफी घटनाएं हो अब रही तो जगह जगह हो रही है। राजौरी में रोज होता है, ऊपर ये लोग तो करवा रहे रोज हैं। कुछ ना कुछ होता। आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैं एयरपोर्ट में चला गया, और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया, और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे, और मुझे मतलब
लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर दुनिया लड़के मैं ताले वहां से- से निकला तो चाबी मुझे से लग रहा बंद था है। कि एक पूरा वहां पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ, वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं, मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है ना इसके लिए और वहां पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफी डिस्टेस्टफुल सा था। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, करा रहा था, तो देखने में क्या बोल रहा है, लैंग्वेज कैसी अवेलेबल बोल रहा है। मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं इसका और फोन है। हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पे। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना है इस पे। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए और कैसे अभी ये तक उसको भड़का रहे हैं सबको। बस इतना मुझे बताना था। देखो प्राइम मिनिस्टर के, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कैसी लैंग्वेज यूज कर रही है। अब ये वो वहां भड़काने पर के लिए meeting कर रहा था, उसने मेरे को फोन किया, मतलब व्हाट सेट ऑफ पर्सन ही इज। दादा मैं बंद करता हूँ, बाद में इसको डिस्कस करते हैं। ओके, जी 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 1 घंटा हो गया। प्रदीप बंद कर दो। जी ठीक है, तो अभी हम इसके समापन की ओर चलते हैं और अगले अध्याय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।